Hello children, this is online class of class 8 and I am your English teacher, and this is the poem The Choice written by Robert Morgan. It is in section 3 of unit 5 of your English course book New Pathways, uh, Oxford University Press, and that is very beautiful poem and it is thoughtful poem. Okay, and that in our life you have seen that we take the decision on the choice is the very important thing, that whatever our choice should be very good, always good, and that is beneficial to the all human beings, all the society and the family. Our choice should not be evil. चिल्ड्रन, हम लोगों का जो चॉइस है, चॉइस ऑफ द लाइफ, आवर डेस्टिनेशन, ये कभी भी एविल नहीं होना चाहिए, कभी भी बैड नहीं होना चाहिए, ताकि जो है वो सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए बुरा नहीं हो. In this poem you see that the poet tells the same thing, that our choice should be the best and should be the beneficial to the whole universe. If our choice is not good, if our choice is selfish, then the nature, the earth will be ruined one in a day. एक दिन ऐसा होगा, दुनिया में क़यामत आएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. द all the earth will be ruined if our the choice of the destruction, a choice of the selfishness and beyond the progress, and that will make our earth ruined one day. It will come. So that is the imaginary poem, whatever, but the poet conveys a great thought. In this poem you will see that the two alien of the different space, they comes to the earth, the destroyed, completely ruined earth. मतलब ये जो आज की दुनिया है, ये एक दिन ऐसा ही कहा गया है, जो मतलब ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी बचा हुआ नहीं रहेगा. और ऐसे स्पेस क्राफ्ट से दूसरे दुनिया के लोग आएंगे देखने के लिए, क्या इस पृथ्वी का हाल है, कैसे ऐसा हुआ. ऐसे इसका स्टार्टिंग है स्टूडेंट्स. दैट इज़ द और a our choice should be the right, that the poet is telling. The poet conveys the same thing again and again, that is our choice should be right, so that our future will be good and will be continued. So that is the warning for the all human beings through this poem. Okay students, so now let's start the poem now. That you see that the two persons, the Starling, the captain of the spaceship, you can say, and the Suncon, that is the celestial geologist, and he has a lot of knowledge about the Suncon. He has a lot of knowledge about the topology, the climate, and all the universal celestial bodies. Okay, and it was said that in the space station, that is the station Z, where they found that in 2048 AD. मतलब ये सभी जो स्टोरीज है, घटनाएं हैं, ये कभी होगा ऐसा माना जा रहा है, और जो कि लोग 2048 में इस तरह से एक सेलेस्टियल बॉडी, मतलब जो मेटेरॉइड्स वगैरह होते हैं ना, और भी कोई प्लैनेट से ऐसे ही विशाल आकार का कोई पत्थर ऐसा टूटता हुआ कोई प्लैनेट से अगर टकराता है, तो आप सोच सकते हो क्या होगा. तो ऐसा मेटेरॉइड्स
दूसरा प्लैनेट से कोई ना कोई एक्सीडेंट के ऐसा कोई विस्फोट के कारण में एक्सप्लोसिव जब होता है एक्सप्लोसन, तो इसमें दूसरा प्लैनेट से एक दूसरा प्लैनेट की ओर बहुत तेज़ गति में आता है, और ये एक्सीडेंट में मतलब जो है ये प्लैनेट पूरा पूरी बिल्कुल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा ही कहा गया है जो मेटेरोइड्स के कारण में 2048 में ये पूरा दुनिया ख़त्म हो चुका था, और जिसका मतलब निशान जो है स्टेशन जेड में रखा हुआ है। ऐसे ही उन लोगों ने वे लोग कहते हैं। और दैट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। नाउ सी दैट द फर्स्ट स्टैंजा दैट दे वर लैंडिंग एंड द ग्रेट थ्रस्ट प्रेस्ड लाइक द मैग्नेटिज्म। मतलब क्या है, इन द फर्स्ट स्टैंजा यू सी दैट जब वो स्पेस शिप जो है इस पृथ्वी पर लैंडिंग करता है, तब क्या होता है ना, एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है, सभी को अपने और अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि आप लोग हेलीपैड वगैरह में देखे होंगे, हेलीपैड में या तो रनवे में आप देखे होंगे जी कि जहाँ हेलीपैड होता है और रनवे होते हैं, तो वहाँ पर कहीं आसपास में कोई मतलब घर वगैरह नहीं होता है, and that is the empty area, completely empty area, because the accidents may cause, and when the planes or the helicopters they land on the on the ground, and you will see, you have seen that all the things are attracted by the planes. okay, ये हेलीकॉप्टर से बाय प्लेन से सब कुछ को अपने की ओर खींच लेता है, इसलिए उसका सामने भी कोई नहीं जाता जब तक ना उसका अब देखे होंगे हेलीकॉप्टर जब तक ना स्टील हो जाता है सन, वो जो उसका जो ब्लेड है वो बिल्कुल स्थिर नहीं हो जाता है, कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता है। ओके, दैट यू नो वेरी वेल। तो ऐसा ही एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो रहा था, सब कुछ को अपने और ड्रॉ कर ले रहा था, अट्रैक्ट कर ले रहा था। वो स्पेस क्राफ्ट जब वो मिडोज में एक घास की मैदान पर उतरता है, तो ऐसा ही कहा है। कैप्टन कौन है, और स्टैगलिन जो है वो कैप्टन है। एंड और आफ्टर दैट दे वर डिस्कसिंग दैट हाउ वाज द सिटी, द डिजर्टेड सिटी, मतलब इस दुनिया क्या होगा आप इस तरह के विनाश होने के बाद, रूइंड हो जाएगा सब। तो बताता है क्या, जो दोनों पहाड़ के बीच में एक डिजर्टेड सिटी, एक वीरान शहर, क्रम्बलिंग, टूटा फूटा घर सब जो है आप पिक्चर में भी देखते होंगे, ऐसे ही जो है मतलब दिखाई देगा। स्पेस क्राफ्ट से लोग आएंगे जब हम लोगों को देखने के लिए, इस पृथ्वी को देखने के लिए, तो ऐसा ही एक क्रम्बलिंग मतलब टूटा हुआ एक मतलब बर्बाद एक पृथ्वी को देखेंगे। दैट इज़ द वार्निंग। ओके स्टूडेंट्स, द डायल्स ऑन ए ब्लू स्क्रीन इंडिकेटेड, वो ब्लू स्क्रीन इंडिकेट करता है उस स्पेस क्राफ्ट में जिसमें कोई ह्यूमन बींग नहीं है। ओके, दैट इज़ द पोएट wants to tell us और now see that the city is a deserted city, that is the मतलब वीरान शहर हो चुका है, मतलब इसमें कोई अब है नहीं। ठीक है, तो and now the everything was crumbling and overgrown. And they all the scenario, all the pictures tell us that is there is no human being at all. Okay, now see that whatever the causes could be that happened, that is not clear, लेकिन ये बताया गया है जो ऐसा ही पृथ्वी का जो है कुछ नामो निशान नहीं होगा, और जहाँ पर केवल जो है वो एविडेंस होगा जहाँ यहाँ पर हम लोग एक दिन थे। ओके स्टूडेंट्स, बट दैट पीरियड देयर विल बी नो एनी ह्यूमन बीइंग एट ऑल। ओके, नाउ सनकॉन द सेलेस्टियल जियोलॉजिस्ट मुस्कुरा कर कहता, स्माइल्ड ओवर हिज कैप्टन शोल्डर, यू वर राइट सेड स्ट्रगलिन जो कैप्टन है वो कहते हैं जी, योर प्रेडिक्शन वाज राइट। योर प्रेडिक्शन मीन्स दैट द सेलेस्टियल जियोलॉजिस्ट सनकॉन का जो प्रेडिक्शन था, क्या प्रेडिक्शन था, दे मस्ट हैव बीन ए वेरी एग्रेसिव पीपल। व्हाट वाज योर मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन?
दैट स्ट्रगलिंग जो कैप्टन कहते हैं नहीं, आपका प्रेडिक्शन सही था, आपका भविष्यवाणी जो है सही था। ये वे लोग जो है मतलब हम लोग के बारे में कह रहा है, दे वर डिस्कसिंग अबाउट आवर अबाउट अस, सॉरी अबाउट अस, दैट नाउ डेज यू सी दैट वी ignore all the natural resources. We always think about ourselves, our benefits. We set up the factories, set up the industries and all the things for our benefits. We don't care the nature, so that such kinds of natural disaster happens day by day. You are just observing all the things, that now the in lockdown period you see that how the nature is beautiful. Okay, because the quantity of the carbon monoxide has been decreased a lot due to the lack running of the vehicles on the road. So that it is the things, students, class, you know that about that the ecological balance we should maintain always. ओके, अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नेचर भी हमें नहीं छोड़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द टू पर्सन्स, ये आपको तो पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा. ये दो व्यक्ति के बारे में भी पता चल गया होगा. और स्टैगलिन और ये सेलेस्टियल जियोलॉजिस्ट सनकन दोनों मिलकर एक ही बात को बताते हैं कि यहाँ के लोग बहुत एग्रेसिव थे. एग्रेसिव मीन्स जो एक दूसरे को हमेशा जो है और आगे बढ़ाना चाहता है, आगे कब्जा करना चाहता है आगे, और एग्रेसिव मूड में रहता है. जैसे क्रिकेट में देखते हो ना, एग्रेसिव प्लेयर कहते हैं हम लोग, आगे बढ़कर खेलता है. तो आज भी दुनिया में यही है. हर देश, हर लोग चाहते हैं हम किस तरह से और आगे बढ़े, लेकिन इस विकास के साथ हम लोग विनाश को भी न्योता देते हैं. हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं जो आने वाले दिन में हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा. हम तत्काल लाभ को ही देखते हैं. Okay students, now see that the great meteorite which broke from earth in 2048 AD. okay, वे लोग बताएंगे ऐसा जी कभी 2048 में ऐसा ही हुआ था. मेटेरॉइड के कारण में ऐसा ही डिस्ट्रक्शन हुआ था. वी टूक इट टू स्टेशन जेट एंड एग्जामिन्ड इट. हम लोग स्टेशन जेट में को ले जाएंगे और वहाँ एग्जामिन करेंगे इसके बारे में, मेटेरॉइड के बारे में. ओके, इट टोल्ड अस एवरीथिंग. व्हाट asked स्टर्लिन. स्टर्लिन कैप्टन बताते हैं क्या? They were allowed to choose. That is the choice. So that the students, ये पोएम का जो टाइटल है, ये चॉइस क्यों रखा गया है? क्योंकि हम लोगों का जो चॉइस है ये दिनों दिन जो है ये कहो जे एंटी नेचर होते जा रहा है. ये पूरा दुनिया को बर्बाद करने की चॉइस हम लोग लिए हैं, और जिसके कारण में ऐसे कहते हैं. ओके, नाउ दैट दे वर द अलाउड टू चूज बिटवीन द गुड और एविल. अभी भी समय है स्टूडेंट्स, दैट इज़ द गुड और एविल को में हमको चॉइस करना है, क्या करना चाहिए. बट एट लास्ट यू सी दैट स्टर्लिन द कैप्टन टोल्ड एंड रिमार्क्ड, मटर्ड, फूल्स. ओह, बेवकूफ़ थे इन लोग. Means we are the fools because we ignore the natural law, and what is good and what is bad that we can't decide at all. We always think about ourselves, our benefits. So that poet tells us, conveys the message that we should have the good choice, and we should use all the natural resources in scientific way and reasonably. Okay students, behind our progress we should be thoughtful to the earth, to the all beings of this earth. Okay students, children, you will get the exercise part and the question answers and all the MCQ in the description box. So that students, you subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the next video also and all the lessons in my channel. Okay students, goodbye.